Good afternoon, everyone. My screen is visible. Yes, ma'am. So yesterday we have read about or we have learned about convolutional neural network. We have seen the theoretical concepts of convolutional neural network and how it is implemented in real life. We have also seen some of the applications of it. Now today what we are going to do? We are going to implement or we are going to create a model, or we can say we are going to create a convolutional neural network for a leaf disease classification. What we are going to do today, we are going to classify the particular types of infected and disinfected leaves in a tomato plant. So what we have done in this particular approach, first of all, before starting, I want to ask some of the questions. When we create a model, before creating a model, what we used to do, when we create a particular model or when we are going to create a neural network, what is the approach or what is the perspective of our particular model, we can say it should be in our mind that why we are creating this particular model or a network. So for this we have to create an objective for ourselves that why we are doing this particular thing. So our approach is that, as you all know, that artificial intelligence is taking all over the things nowadays. So in the field of agriculture also, we are thinking to find out some of the things that will be helpful with the help of artificial intelligence. So we have created a particular model for classifying the leaves. Basically, when for example, if I ask you a question that how will you decide that crop is infected or not? How will you come to know that this a particular crop is infected or not? By seeing its leaf, we can say. By seeing the type of leaf it is having, the particular fruit it is having, we can decide the particular crop is infected or not, it is fresh or not. So through our model, what we are going to do today, we are going to analyze the particular infection a particular leaf has. So our model is going to decide. By seeing, we can decide it that yes, the particular leaf is not infected or infected. But we are not going to do this by ourselves. This particular thing or this particular functionality will be performed by our convolutional neural network. So first of all, before creating a model, first step will be we are going to collect the data. So to collect the data, what we are going to do? We are going to collect the data through Kaggle. Kaggle is a website from where you can get a data set and on which we can implement the things. Right now, we are not going to collect the data from real world, or we can say we can't collect the data by going in the fields and capture the images from there. So for our easiness, or we can say for our concern, we can take the data set from Kaggle. Kaggle is a website from where you can take the data or download it, and we can implement the data here and create the model on it. So I'm going to show you the website also from where you can take the data set. Just 1 minute. Just 1 minute. Ma'am, Yes, hello. ma'am, can you please send the picture in WhatsApp group as well? Okay, ma'am, sure. Ma'am, picture of what? This leaf disease, so that I Okay, ma'am, can I will also. share the ma'am, I'll share the link. Just 1 minute. I'm going to share the link Okay, so you okay, can access the data set from there. okay, ma'am. Just 1 minute, ma'am. Hello. Yes, am I audible now?
Ma'am, the link will come in the group in some minutes. So you can access the link and download the data set from there. Okay, ma'am. Yes. So where were we? Yes, we have downloaded the data from Kaggle. So Kaggle is a website. You can also create your account there and access as much as data as you want. So the data there is a processed data. You don't have to process the particular data. If you collect the data from real world, for example, if I go in an agriculture field and I used to collect some of the images of the leaves. So it may be possible that the leaves, some of the images can be blurred images, or we can say the shape and size of the image is not equal of all the images. So where to make this thing easy, what we have done, we have collected the data right now from a particular website where data is there in the folders like train and test folders, and you can access the data from there. After accessing the data, what we are going to do? We are going to upload that data on our drive. You all know how to access the data, or we can say you all know how to access the drive and read the data from the drive. Or I should tell how to do this particular thing. Hello. Everyone knows Yes, that how ma'am. to use collaboratory, Google Yes, ma'am. Collaboratory. Yes. So what you have to do, you have to open your drive. After opening your drive, you have to click here for new and upload folder. You can see here folder upload. So you, when you will click on this particular thing, it will redirect you to your device and you can upload the folder from your device. After uploading the folder, you can see here you will have train and validation, two kinds of folders. Now, why two kinds of folders we are having here? Can anyone tell me? Hello? Yes. See, we will have two types of folders here. One is training folder and second one is validation. Why? Because training folder, on this particular training folder, we are going to train our model. Is it correct? We are going to train our model on this particular data, and after training the model, we are going to test our model on this validation data, or validation, or you can say testing. The particular terms can be said interchangeably. Is it clear? So that's why we are having two folders, one for training data and second for testing the model, that how our model is performing. After training our model, what we want from our model? If you train a particular model, after training that model, you want predictions from a particular model. How your model is predicting. Is it correct? Means after Yes. training the model, अगर आपने particular model train किया, then what you want the model to give you? Predictions. So we want the predictions that will be reliable for us. So after testing the model, we will get to know that how our model is performing. आप पर्टिकुलर जब टेस्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाउ हमारे किस तरह से जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर रहा है, कि इट इज प्रिडिक्टिंग वेल और नॉट. लाइक हमने कल एक पर्टिकुलर चीज, हमने एक एग्जांपल लिया था. इफ वी से, अगर मैं कहूँ कि डॉग्स और कैट्स में मुझे क्लासिफिकेशन करवाना था, इफ यू रिकॉल द प्रीवियस थिंग्स, तो हमने कहा था कि डॉग्स और कैट्स में हमको क्लासिफिकेशन करवाना है. सो हाउ वी विल डू दैट क्लासिफिकेशन? हमने देखा था कि वहां पर प्रोबेबिलिटी थी कि 95% जो है वो पर्टिकुलर मॉडल ने डॉग को क्लासिफाई किया है एंड रिमेनिंग 5% जो है वो कैट की फीचर्स को आइडेंटिफाई किया है. सो हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमको कब पता चलेगी ये चीज? When we will apply this validation data to our training model, and after that we will get the predictions that what is the probability of each class. We are having multiple classes. For multiple classes of the diseases here, there are multiple diseases in a tomato leaf. There is not only one disease. पर्टिकुलर टमेटो लीफ जो होती है उसमें मल्टीपल डिसीजेज होती है. ऐसा नहीं है कि Yes, ma'am. पर्टिकुलर एक डिसीज है. तो हमको क्या करना है, वी हैव टू क्लासिफाई दोज डिसीजेस. So our model is going to classify the diseases, but what we are going to get there, the probability of the particular model. की probability क्या predict की है? 95% healthy leaves है, उसमें 5% infected leaf है. Is it clear? So for that, we are going to test our model on the validation data. That's why we have taken two particular folder here. Is it clear now? After uploading the folder here, what we are going to do? The first process is, before creating a model, if we have taken data here, what we are going to do? We are going
to import drive on our collaborator. Everyone knows this. You have to import the drive on your collaboratory. Why so? हमको जो अपना ड्राइव है वो यहाँ कोलैबोरेटरी पे हमको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है. सी फ्रॉम google.colab import drive and drive.mount content/drive. Why I have written this particular code here? Anyone? Yes. See, for accessing the data, जो आपने ड्राइव पर अपलोड किया है डेटा, उसको हमको यहाँ पर एक्सेस करना है इन द पर्टिकुलर कोलैबोरेटरी. अगर जब तक मैं डेटा एक्सेस नहीं करूंगी, until and unless I will not access the data here, I can't get the things from the particular folder. I can access the particular folders. Folders के अंदर क्या है, मेरी images हैं. So I can't get the particular images in this particular code base. So to access those data, I have to particularly import this particular drive here. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So what we are going to do after importing the drive, we are going to import some of the libraries. Why do we need libraries here? Anyone? See, like I have written here, import matplotlib, import numpy, import itertools. What are these kind of things? Why I have written these particular things and why we are importing these things? For plotting, we need matplotlib. Yes, for plotting and TensorFlow for creating a model. See, basically, when we write a code, we need some of the particular libraries through which we can make a code base easy. These libraries make our code easy. ये हमारी जो libraries use होती हैं, हमारे code को easy बनाती हैं. कैसे easy बनाती है? Basically, अगर मुझे particularly एक graph plot करना है, for example, if I say that I have to plot a bar plot, yes. So to plot that particular plot, मुझे उसकी functionality नहीं चाहिए. I have to just write the particular thing that plot dot bar plot, and you can give the data there. After that, this library will plot your particular data there in the form of bar plot. So libraries are there to make your code base easy, and you can easily code the things in the model. So that's why we are using some kind of libraries here. After accessing these libraries, we are going to access the particular classes and modules from these libraries, which we will be needing in our particular model. Is it clear to everyone? Now, before that, let's see some of the classes of leaf. You can see here different kind of diseases you can see on the leaf. Can you tell me which is the healthy leaf here? Anyone? Third one. Third one. It can be easily visible now. You can see here that the third leaf is healthy one, and except that all leaves are infected. So through your eyes or through human vision, we can say that we can identify these things easily. But do you think that a machine will identify these things easily? Even I don't know what is the particular disease of image, the first number image is having. I don't know the particular name of the disease. So how we can expect from a machine to recognize these things easily? So what we are going to do, we are going to give multiple number of images to our machine to train the model. We have to give an excess number of data to our machine to train it. Until and unless we will not give a proper amount of data to our machine, it is very difficult for a machine to recognize the things. It is same as a human brain. If I will give you a particular thing or I will show you a particular thing only once, it will be not possible for you to recognize it easily. But if I will show you that particular thing 100 or 1,000 times in a day or in half an hour or 1 hour, then you will easily recognize it after some time. It is normal, it is a natural behavior, we can say. So that only we are going to do here also. We are going to train our machine on the data set, data or information, we can say. So what we are going to do, we are going to take the data, we are going to give the data to the machine, and we are going to train our machine on that particular data set. So in our data set, we are having 10 types of classes of leaves. You can see here, see,
The 10 types of classes you can see here, that is, we are having a tomato leaf, and in the tomato leaf, different kinds of disinfectants are bacterial spot, early blight, late blight, leaf mold, septoria, leaf spot, and many more you can see here. And one is healthy leaf. These are all are the diseases. Even we can't identify that. And what we are going to do here is we are going to make our machine train such as that it will going to identify these things easily. Is it clear to everyone? Now, if I ask you that what is the objective of our model, or what is the objective to create this particular model, can you tell me now? अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बनाने के लिए, अगर आप पर्टिकुलर कोई भी मॉडल बनाते हैं, अगर मैं कोई एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना रही हूँ, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क अगर आप बनाते हैं, और अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्रेन करते हैं किसी मॉडल को, देन आपका सबसे पहला कंसर्न, देन योर फर्स्ट कंसर्न शुड बी दैट व्हाई यू आर मेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. आप उसको क्यों बनाना चाह रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज ऐसी तो बहुत सारी मल्टीपल चीजें ऑलरेडी हैं, बट यू शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव और योर परस्पेक्टिव टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर थिंग. सो माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस थिंग. हम ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये हमको कहाँ बेनिफिशियल रहेगा? क्योंकि नॉर्मली अगर मैं ये लीव्स देखूं तो मैं क्लासिफाई कर सकती हूँ. यस, आई कैन इजीली क्लासिफाई कि ये जो है ये हेल्दी लीव्स है, बाकी की जो है वो सारी इन्फेक्टेड लीव्स हैं. बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर अप्रोच? इस अप्रोच के पीछे क्या रीजन है दैट वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर मशीन टू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग? एनीवन? Specific infection which is caused by the specific bacteria or viruses, so that we can उसके अगेंस्ट वही हम केमिकल्स या इंसेक्टिसाइड यूज कर सकें. यस यस यस, करेक्ट. सी, बेसिक रीजन यही है कि अभी क्या हो रहा है, बेसिकली ये चीज है कि वी आर गोइंग टू द एरा ऑफ ऑटोमेशन. हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर हर चीज ऑटोमेट होगी. सो व्हाट वी वांट कि अगर एक पर्टिकुलर लीफ में कोई भी तरह का इन्फेक्टेड चीज है, तो एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग, मतलब जब प्लांट ग्रो होता है, हम उसको जब ही क्या कर लें, जब भी देख लें कि पर्टिकुलरली ये लीफ अगर इन्फेक्टेड है, तो ये जो इसका फ्रूट रहेगा वो भी प्रॉपर नहीं आएगा. इट इज ऑब्वियसली मीन्स ट्रू कि अगर आपका लीफ इन्फेक्टेड है तो धीरे धीरे आपका या तो क्रॉप पूरा खराब हो जाएगा या फिर वो क्रॉप खराब ही आएगा. यू कांट गेट अ हेल्दी फ्रूट फ्रॉम द इन्फेक्टेड लीव्स. इज इट क्लियर? ये सब आप एग्रीकल्चर वाले, सो यू नो इट वेरी वेल. सो दिस इज द थिंग कि पर्टिकुलर हमारा मोटो यही है कि हम पर्टिकुलर अगर हर फील्ड में जा रहे हैं, लाइक यू हैव सीन in medical field also AI is going very fast. So we want that in agriculture field also we are going to make, or we are going to create such kind of model which will make the uh, we can say which will make our work easy. Is it clear? If your model, for example, if your model will identify these things easily, what we are going to do, we are going to just give the particular what we can say pest means what are the medicines will be necessary, which will be necessary to stop or prevent these things. We can give it to the plants. We can do this. अगर हमको ये पता चल जाए कि अगर पर्टिकुलर इसमें क्या डिसीज है, पर्टिकुलर प्लांट है, विदाउट अ ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब जिसके बिना ह्यूमन के पर्टिकुलर विजन के, और वी कैन से बिना ह्यूमन एनालिसिस के, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. बिकॉज इतना आसान नहीं होता, बिकॉज फील्ड्स बहुत बड़ी बड़ी होती है. यू कैन इवन सी दैट देर आर ह्यूज फील्ड्स जिसमें हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं. So it is not possible for a farmer also to analyze each and everything. So this is the particular motto of our uh, model, that why we are creating it, so that we can analyze that what are the infected and disinfected leaves in this particular model. Is it clear? Is it Yes, clear ma'am. to everyone? Yes. So before making any of the model, not only this one, before creating any neural network, you have to make your perspective or objective clear, that why you are doing this particular thing. Is it clear to everyone? So now it is clear that why we are going to create this thing. After that, what we are going to do, we are going to import all of the libraries which will be necessary to create our model. After creating the libraries, we have imported the drive.
I told you right now that why we are going to import the tribe here. After importing the tribe, we are going to load the data. Now, this is some of the things you have to take care properly. What we are going to do, we have written a variable here. Now, can you tell me what is a variable? Anyone? Why we have declared two variables, train generation and test gen? Yes, this is very basic concept of Python, that what are variables. Hello. Yes, ma'am. Because we are going to train, that's why we specify this name, train Yes, we are underscore. going to create variable here because we are going to store the data in this particular variable. Yes, 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 a correct. variable is nothing but a particular name we can say, or we can say a particular data container where we are Store going to under store train our data. underscore gen. Yes, yes, yes. So we are going to store our data. What see I have written here that I'm going to load the data. First I'm going to load the data here, and after loading the data I have to store it at a place. मुझे अगर मैंने कोई particular data load किया तो मुझे उसे कहीं तो रखना पड़ेगा. So Hmm, अभी मैं coding कर रही हूँ. So I can't create folders here. Is it clear? So I have to correct. create a particular variable here, and in that particular variable, I have stored the data. Now again, if you will see, I have done here. I have created two variables. मैंने दो variables create किए, Train train and test. generation and test. Why so? दो अलग अलग variables क्यों create किए हमने? Train and test. Anyone? Because दोनों ही करना है, ट्रेन भी करना है, आफ्टर दैट टेस्ट भी. यस, दोनों का नेट ट्रेन एंड टेस्टिंग. सो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने सेपरेट रखा है डेटा को. वी हैव सेपरेटेड बोथ द डेटा, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा. व्हाई सो? हमने ऐसा क्यों किया है कि हमने ट्रेनिंग डेटा अलग रखा है, टेस्टिंग डेटा अलग रखा है? सी, बिकॉज ट्रेनिंग डेटा पे क्या करेंगे, हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे. Once I will give the images, for example, if I say that I have given 10,000 images to our model, मैंने 10,000 images पे अपने मॉडल को ट्रेन किया है. Is it clear? After training that particular model on 10,000 images, मैं 1,000 images क्या करूंगी, अलग रखूंगी. I will not show these images to our model. मैं ये जो 1,000 images जो मैंने अलग रखी हैं, ये अपने मॉडल को नहीं दिखाऊंगी. आई विल टेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा. मैं अपने मॉडल को क्या करने वाली हूँ, टेस्ट करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर डेटा पे. इसको अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को और इजीली समझना है, देन टेक एन एग्जांपल ऑफ योर एग्जामिनेशन. क्या होता है जब हम एग्जाम्स देते हैं तो 6 मंथ्स तक हम क्या है, पूरी बुक को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें से लर्न करते हैं थिंग्स. ठीक है. व्हाट हैपन एट लास्ट क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हमसे बाहर से भी पूछे जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पर्टिकुलर बुक्स में से ही हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, और उसके बेसिस पे हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, दैट हाउ वी आर परफॉर्मिंग. सेम यहाँ पर भी है. हमने क्या किया है, पहले अपने मॉडल को जो है वो डेटा पर ट्रेन किया है, और यूज एक्सेस डेटा में ट्रेन किया है. अनटिल एंड अनलेस आप अपने मॉडल को अच्छा डेटा नहीं प्रोवाइड करोगे, इट विल नॉट ट्रेन प्रॉपरली. इतना इजीली ट्रेन नहीं होता मॉडल. So we have provided at least 10,000 images to our model on which we have trained the particular model. And after training that particular model, what we have done, we have analyzed or we have evaluated that model on the basis of testing data. So that's why I have created here two particular variables. The first one is train generator and second one is test one. So in train data generator, what I have done here, we have put the data of training data, basically we can say. You can see here, I have imported the particular data from the directory. You can see here I have written image dataset from directory. Our directory, where is our directory? In our Google Drive. So from that directory, we have given the path of this particular directory. You can see here we have given the path. You also have to give the path. अगर आपका path कुछ और है, मेरा path है directory का, आपका path कुछ और हो सकता है. In your Google Drive, अगर आपने कोई folder बनाया है जिसमें आपने training images रखी है, then you have to give the path. आपको यहाँ पर उसका path provide करना पड़ेगा. Now, can you tell me one thing? After that, I have written here image size is equals to 256, 256. Why so? मैंने यहाँ पर image का size क्यों particular लिखा है ये? Any reason behind this? इसके पीछे कोई reason है? Anyone?
मैंने कल एक चीज आपसे डिस्कस की थी when we were discussing the theoretical concepts of convolutional neural network. At that time I have uh, told about this particular thing also, okay, why we are using the image size, or does image size matter in our model? Anyone? अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन, क्या इमेज साइज मैटर करती है आपके मॉडल में? अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट इमेज साइज के पिक्चर्स अगर अपने मॉडल को प्रोवाइड कर दूं, सो क्या वो मॉडल ट्रेन हो जाएगा? और अगर ट्रेन होता है तो क्या वो प्रॉपर होगा मॉडल? यस मैम, डिफरेंट साइज का भी हम ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्री प्रोसेसिंग करना होगा ताकि हम क्लीन कर सके और एक जैसा डेटा बना सके। यस मैम, यू आर करेक्ट, बट थोड़ा सा चीज ये है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ, अगर आपके पास डेटा आया है, आई एक्सेप्ट दैट कि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और वी कैन से डिफरेंट साइज और शेप की इमेजेस हैं, बट बिफोर गिविंग दिस डेटा टू आवर मॉडल, आपको सारे जितने भी इमेजेस हैं आपके डेटा सेट में, आपको उसको एक साइज में रखना पड़ेगा. You can't pre-process, or we can say कि you can't implement anything on different kind of images or different shapes and size of images. A model need same kind of, or we can say same types of images in a particular data set. So that's why सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैंने जब यहाँ पर ट्रेन जनरेटर में जब अपने डेटा को स्टोर करवा रही हूँ, तो अपने को सबसे पहले मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली डेटा इंपोर्ट करा है डायरेक्टरी से, एंड उसके बाद मैंने क्या करा है कि सारे इमेजेस जो है उनका साइज 256, यहाँ पर प्रोवाइड कर. सो आपके जितने भी इमेजेस होंगे वो अगर दूसरे भी शेप में है, इफ दे हैव डिफरेंट शेप्स आल्सो, दे विल बी कन्वर्टेड टू 256, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या पर्टिकुलर इमेज का साइज रखना है. इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस इज द यूनिवर्सल थिंग कि आपको यही रखना है. इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट द साइज ऑफ द image. But for our concern, or we can say for our thing, what we have done, we have taken the image size as this. Take the image size which is compatible with your model. Don't take too small size of the image, or don't take too large size. Take a medium size image and train your model on that particular image. Is it clear to everyone? यस मैम। Now, after taking the image, what we have done, we have created two variables. We have stored our data into two variables. Again, you can see here in the test generation, we have taken the data from the directory. We have given the path of the directory here. And after giving the path of the directory, we have set the size of the image, 256, 256. Do remember this, the size of the validation data, or we can say testing data, doesn't matter here, because we are going to test the particular model. But right now we are going to train our first model. So that's why for this time we have given the size of the validation or the testing data also as 256, 256. Because when our model will perform in real world, अभी तो क्या है कि यहाँ पर मैं अपना मॉडल कोलैबोरेटरी पे क्रिएट कर रही हूँ और यही मैं इसको रन करने वाली हूँ. बट जब मैं इस मॉडल को रियल वर्ल्ड में लेके जाऊंगी, रियल वर्ल्ड इन द सेंस आई शुड से कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड में जब इसको लेके जाती हूँ, एक पर्टिकुलर इमेज कैप्चर होगी थ्रू फ्रॉम दैट फील्ड. सो अगर जो इमेज कैप्चर हो रही है वो तो किसी भी साइज की हो सकती है. इज इट करेक्ट? इट इज नॉट करेक्ट। नेसेसरी कि वो इस पर्टिकुलर साइज का इमेज कैप्चर करे. सो हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो डेटा आएगा उसको पहले रिसाइज करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द थिंग्स फ्रॉम दैट, and make sure that train your model on a particular data uh, so good that it will perform based on the real world data also. Because it happens, बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि आपका मॉडल जो होता है वो आपका ट्रेनिंग, अगर आप डेटा पे उसको टेस्ट करते हैं, जिस डेटा पे आपने उसको ट्रेन किया है उस पर ही टेस्ट करेंगे, तो इट विल गिव यू बेस्ट प्रिडिक्शंस. बट अगर आप उसको रियल वर्ल्ड में लेके जाते हैं एंड आफ्टर दैट यू टेस्ट दैट पर्टिकुलर मॉडल, इट डजंट परफॉर्म सो वेल, वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है. सो मेक श्योर दैट आपका जो पर्टिकुलर मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा पे, टेस्टिंग डेटा पे, जब रियल वर्ल्ड में मैं उसको क्या करूंगी, इम्प्लीमेंट करूंगी, वहां पर भी वो क्या करें, सेम परफॉर्मेंस हमको प्रोवाइड करें. इज इट क्लियर? नाउ, after creating these two variables, what we have done here, rescaling. Anyone knows the concept of rescaling? You can see here I have created again a variable rescale, and in that particular variable I have taken a function rescaling. What this function is going to do here?
Yes. Anyone knows rescaling is a normal concept of mathematics, I should say. रीस्केलिंग इज नथिंग. रीस्केलिंग मतलब का ना, मतलब बेसिकली आप पर्टिकुलर एक स्केल में जब डेटा को लेके आते हैं. Is it clear? You can see here what I have done. I have divided all the data with 255. 255 यहाँ पर क्यों लिया आपको बता सकता है? There is a range 0 to 255. 0 to 255. Yes, Yes. एक रेंज होती है 0 to 255. तो हमने क्या किया, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है, जब भी हम स्केलिंग करते हैं, सो वी टेक द लार्जेस्ट नंबर एंड डिवाइड आवर होल डेटा विद दैट, और हम उस डेटा से पूरे को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. बाय सो इसलिए करते हैं बिकॉज अगर आपका डेटा कोई जो है वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है या फिर बहुत ज्यादा, लाइक इफ आई शुड से कि वो अगर 1050 है, 2000 है उसकी वैल्यू, इस तरह से अगर कुछ वैल्यूज आती है तो व्हाट वी डू, हम उसको स्केल्ड कर देते हैं. स्केल्ड इमेजेस में क्या होता है कि सारे इमेजेस एक पर्टिकुलर क्या हो जाते हैं, लेवल में आ जाते हैं. व्हाई वी डू दिस, ये क्यों करते हैं हम? सी विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग टू ट्रेन आवर मॉडल as much as possible so that we can get the best predictions. Our motto is that हमारा motto ये होना चाहिए, the goal should be that हमारा जो particular model train हो रहा है वो best predictions दे. Is it clear? So we will do as much as things we can do on this particular data to train our model. हम उतनी चीजें कर सकते हैं जो हमारे मॉडल, हम बेसिकली उतने प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स लगा सकते हैं जितने हम कर सकते हैं, सो दैट हमारा मॉडल जो है वो बेस्ट ट्रेन होगा. So that's why मैंने यहाँ पर rescaling का concept भी use किया है. So we have rescaled the data and divided it by 255 because ये हमारा largest number होता है. इससे हम क्या करते हैं, पूरे data को divide कर देंगे. Now normalize करने से क्या होता है, this will be directly proportional to the prediction of your particular model. ये आपसे direct prediction पे जो है वो उससे directly proportional होती है चीजें. ये सब जो है हमको prediction के time पे जो है हमको वहां पर इन पे changes दिखेंगे. अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है कि रीस्केलिंग या स्केलिंग करने से जो है वो हमारे मॉडल पे कुछ डिफरेंस आता है, सो यू कैन डू दैट आल्सो. आप दो मॉडल्स बना सकते हैं, एक में इस रीस्केलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना, एक में यूज मत करना, एंड यू कैन सी, you will see the changes or you can see the difference in the prediction of both the models. Is it clear to everyone? So why we use rescaling concept? See, these are the pre-processing steps. We say that these are the pre-processing steps and you have to do this pre-processing steps before implementing or before creating a particular model. Is it clear to everyone? Now, what I have written here, again we have created a train generator and test generator, this particular variable only, and we have given the particular label also. Each image each and every image in the particular data set have a label. Now can anyone tell me that what is the use of label in a particular image? Is there any use of that particular label? Label means particularly like name. अगर मेरा फोटो है तो उसके नीचे मेरा नेम होगा, that is known as label. So क्या पर्टिकुलर इमेज के नीचे उसका लेबल होना नेसेसरी है या उसके करस्पॉन्डिंग उसका लेबल होना जरूरी है क्या? यस. इवन मैं अगर पर्टिकुलर इमेज को देखूं यहाँ पर, इफ आई सी दिस पर्टिकुलर इमेजेस, देन आई कैन इजीली से दैट यस, ऑल द इमेजेस आर इन्फेक्टेड एक्सेप्ट थर्ड वन. Then why do we need labels for our images? Anyone? Hello. Yes. It is very easy concept. See, labels हम इसलिए यूज करते हैं, फिर से हम इसको रियल वर्ल्ड से अगर कनेक्ट करें, अगेन वी कनेक्ट दिस थिंग विद रियल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक पर्टिकुलर मॉडल ट्रेन करना है जो पीपल्स के फेसेस को क्या करे, रिकॉग्नाइज करे दैट हु इज दिस पर्सन. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आप अपने मॉडल को ट्रेन करोगे तो किस डेटा पे ट्रेन करोगे? ऑब्वियसली आप पर्टिकुलर पर्सन का फोटो दोगे, उसके करस्पॉन्डिंग उसका नेम दोगे. ऑब्वियसली वी हैव टू डू दिस. अगर मैं पर्टिकुलर मेरे फेस पे अपने मॉडल को ट्रेन करना चाहती हूँ तो आई हैव टू गिव द नेम ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, और वी कैन से कि मुझे अपने पर्टिकुलरली पिक्चर के साथ उसके करस्पॉन्डिंग नेम भी देना पड़ेगा दैट हु इज दिस पर्सन. अदरवाइज हाउ आवर मशीन विल रिकॉग्नाइज दैट हु इज दिस पर्सन और हु आर यू?
इट इज ऑब्वियस. सो दिस इज द रीजन. यहाँ पर यही रीजन है कि लेबल इसलिए प्रोवाइड करते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्रेन. अभी हम ट्रेन कर रहे हैं. जब तक आप पर्टिकुलर चीजों को ट्रेन करते हो तो आपको सारा डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है हमको. यू हैव टू प्रोवाइड होल डेटा. तो आपको ये डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इमेज है उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, उसका नेम जो है, दैट व्हाट इज द पर्टिकुलर डिसीज. अगर कोई हेल्थी लीफ है तो ये मेरे मॉडल को कैसे पता चलेगा या मेरी मशीन को कैसे पता चलेगा ये हेल्थी लीफ है. जब कैसे पता चलेगा, जब मैं ऐसी बहुत सारे लीव्स अपनी मशीन को दूंगी, उसके करस्पॉन्डिंग लिख के दूंगी कि हाँ अगर ऐसी लीफ आती है वो हेल्थी लीफ है. तो मेरा मॉडल उसको बार बार रिकॉग्नाइज करेगा. मेरा मॉडल जो है तो बार बार ट्रेन होगा कि अगर इस तरह की लीफ है मतलब वो हेल्थी लीफ होती है. एंड देन इट इज गोइंग टू ट्रेन इटसेल्फ ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा. और फिर उस पर क्या करता है, वो खुद को इस तरह से ट्रेन करता है. Is it clear? So that's why we create a label also here. आपको इमेज के साथ, हर इमेज के साथ एक लेबल होता ही है. Is it clear to everyone? After running this particular code, see हमने जब ये कोड रन किया तो what we have found here? Found 10,000 images belonging to 10 classes. Found 1,000 images belonging to 10 classes. Now, can someone tell me कि यहाँ पर दो बार ये particular चीज क्यों लिख गया है कि found 10,000 files and found 1,000 files? Anyone? What is the reason? Hello. See, अगर आप एनालाइज करेंगे तो मैंने यहाँ पर ट्रेन जनरेटर और टेस्ट जनरेटर दो वेरिएबल्स क्रिएट किए थे. इज इट क्लियर? मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए तो ट्रेनिंग डेटा में जो है वो 10,000 इमेजेस आए हैं और जो 10 क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं. 10 क्लासेस कौन से हमारे, जो अभी मैंने आपको बताए थे, जो बेसिकली हेल्दी एंड 9 इन्फेक्टेड लीव्स थी. ऐसे ही हमने 1,000 फाइल्स कहाँ रखी है, वैलिडेशन. वैलिडेशन इन द सेंस टेस्टिंग के लिए जो हमने रखी है. एंड 10 क्लासेस मींस अगेन उसमें भी 10 क्लासेस ही हैं. डू रिमेंबर, जब भी आपका पर्टिकुलर एक मॉडल क्रिएट करते हैं सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इन माइंड कि पर्टिकुलर जब आप किसी मॉडल को ट्रेन करेंगे सो आपका जो ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए वो एक्सेस होना चाहिए. एक्सेस इन द सेंस दैट until and unless you will not provide a huge amount of data to your model, it will not train properly. Is it clear to everyone? So what I have done here, I have given 10,000 images. So what do you think? 10,000 images are sufficient for a model to train? Yes. सी थिंक इट ऑन योर बिहाफ. अपने एंड पे लेके सोचो चीजों को. अगर मैं आपको कोई 10,000 इमेजेस दूं 5 कैटेगरीज की, 5 कैटेगरीज मीन्स फूड कैटेगरीज ले लीजिए कि मैं आपको 5 तरह के डिफरेंट डिफरेंट फूड कैटेगरीज दूं. हर एक की जो है मैं आपको फॉर एग्जांपल 2,000 इमेजेस दिखाऊं. ऑब्वियसली यू विल रिमेंबर इट. आप उसको कुछ तो आपको रिकॉग्नाइज कर ही लोगे अगर मैं आपको उसको थोड़ी देर टाइम बाद भी अगर उससे प्रिडिक्ट करवाती हूँ तो. यू कैन प्रिडिक्ट इट इजीली देन. तो इट इज सफिशियंट इमेजेस. अगर आपका 10,000 इमेजेस है आपके पास, हर एक कैटेगरी के आपके पास 1 या 2,000 इमेजेस हैं, then it is more than sufficient for you to recognize the things. Yes, बट अगर आपके पास डेटा बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि पर क्लास मेरे पास 10 to 20 इमेजेस हैं, 30 इमेजेस हैं, then it is not possible for your model also to train. Is it clear? So when we train a model, we train the model on huge amount of data, excess amount of data, and the training data should be large. So here we have taken 10,000 images for training our data and 1,000 images for testing purpose. Is it clear? टेस्टिंग के लिए इट इज नॉट नेसेसरी टेस्टिंग. तो आप पर्टिकुलर जब हम रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग करने जाते हैं तो वो 2 से 4 इमेजेस पे भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन अस. वहां पर हमको पता चल जाता है देन व्हाट इज द एंड हाउ इज द प्रेडिक्शन हियर. Is it clear? Is it clear to everyone? These are the key points. ये हमको की पॉइंट्स होते हैं जो हमको रिमेंबर. यू हैव टू रिमेंबर सच काइंड ऑफ पॉइंट्स व्हाइल क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर मॉडल. अदरवाइज पता चला कि मैंने अपने टेस्टिंग में जो है वो 10,000 इमेजेस ले ली, ट्रेनिंग में मैंने इमेजेस दी नहीं है अपने मॉडल को, देन व्हाट विल हैपन? यू विल क्रिएट अ डिस्टॉर्टेड मॉडल. आप ऐसा मॉडल बनाओगे जिसका कोई यूज नहीं होगा. सो यू हैव टू रिमेंबर सम काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन यू क्रिएट अ पर्टिकुलर मॉडल. आफ्टर दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली ट्रेन जनरेशन डॉट क्लास नेम्स, यहाँ पर हमने क्लास के नेम्स निकाले हैं जो हमारे पर्टिकुलरली ट्रेनिंग डेटा में है. सो यू कैन सी हियर 10 क्लासेस ऑफ टमेटो लीव्स. 10 क्लासेस में से एक हेल्थी है और उसमें से 9 जो है वो पर्टिकुलरली
डिसीज्ड है, वी कैन से जो डिसीज्ड लीव्स हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सब आई डोंट नो इन द डीप, मुझे इतना डीप में ये सारी चीजें पता नहीं बेसिकली, बिकॉज एक पर्टिकुलर लीफ पे आपने देखा होगा तो डिफरेंट काइंड ऑफ आपको उस पे स्पॉट्स दिखते हैं कभी कभार। कभी जो लीफ होती है वो बहुत खराब हो जाती है, यू कैन सी हियर लाइक दिस वन, इसमें कुछ स्पॉट्स हो जाते हैं, कुछ इस तरह की इसमें चीजें हो जाती है, कभी लीफ जो है वो पूरी मीन्स डिस्टॉर्ट हो जाती है। सो ये जो है हर एक पर्टिकुलर लीफ की जो है वो डिसीजेस के नेम्स हैं एंड दे आर गिवन हियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमारे पास जो डेटा है उसमें हमारे पास हर एक लीफ जो है, जो इन्फेक्टेड लीफ है, जो डिसइंफेक्टेड लीफ है, हमारे पास हर एक पर्टिकुलर लीफ के करस्पॉन्डिंग उसका डेटा रखा है एंड ईच लीफ के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 10,000 1000 इसके करस्पॉन्डिंग इमेजेस है। लाइक अगर बैक्टीरियल स्पॉट है उस पर, तो 1000 इमेजेस हमारे पास बैक्टीरियल स्पॉट लीव्स की है। So we can train this model on this particular thing. Is it clear to everyone? Now, data engineering. Since the data is already augmented, there is no requirement of data engineering. Feature scaling is automatically done by image generators. See, now what is the concept of data engineering? Data engineering क्या होता है? Anyone knows this? Data engineering is nothing but when we collect the data, आप अगर real world से data collect कर रहे हो और you are collecting data from web scraping, अगर आपके पास पर्टिकुलर डेटा कहीं से भी आता है, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू प्री प्रोसेस दैट डेटा। प्री प्रोसेसिंग तो हमको करनी ही पड़ेगी। सो प्री प्रोसेसिंग जो होती है, वी हैव अ बेनिफिट हियर, आपको डीप लर्निंग में इतनी ज्यादा प्री प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो पर्टिकुलर डेटा को जो है वो प्रॉपर रीड करके उसको सबको साइज ऑफ इमेज सेम होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड इज स्केलिंग, आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी सो दैट आपका जो पर्टिकुलर डेटा है वो पूरा नॉर्मलाइज हो जाए। एक्सेप्ट दैट अगर आपका डेटा बहुत ही ज्यादा खराब है तो फिर हमको आगे इसमें और प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स लगती है, अदरवाइज दीज टू स्टेप्स कैन क्रिएट अ प्रॉपर डेटा फॉर अवर मॉडल। Is that clear? So data engineering हमारे पास already proper data, so we can means we don't have to do so much pre-processing steps in this particular data. So this is a benefit for us. We can say हमारे पास benefit है इस चीज का कि हमको इतना ज्यादा इसमें pre-processing नहीं करनी पड़ रही। whenever जब भी पर्टिकुलरली हम कोई एक मॉडल बनाते हैं, और वी कैन से कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करते हैं, वी कैन से हम जो बोल सकते हैं कि मैंने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया है। सो यहाँ पर जब आप एक रियल वर्ल्ड में चीजों को लेके जाएंगे, देन इफ यू विल आस्क सम पर्सन कि इसमें है क्या, तो दे विल से दैट पर्टिकुलरली अगर आपका डेटा प्रॉपर है देन यू विल गेट ऑल थिंग्स प्रॉपर। अगर आपका डेटा प्रॉपर नहीं है, दैट आगे अगर मॉडल क्रिएट करने का उसमें कोई यूज ही नहीं है अगर आपका डेटा प्रॉपर नहीं है। सो अगर मेरा डेटा यहाँ तक मैंने देखा कि यस आई हैव करेक्ट डेटा, मेरे पास प्रॉपर डेटा है, प्रॉपर नंबर ऑफ इमेजेस हैं, सारी इमेजेस अच्छी हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो लेबल्स हैं वो परफेक्ट हैं, एंड मैंने स्केलिंग की है, देन 60% ऑफ योर मॉडल विल गिव प्रेडिक्शन। मतलब आपका 60% मॉडल तो यहाँ पर ट्रेन हो जाता है जब आपका डेटा परफेक्ट होता है। आफ्टर दैट जो बाकी के स्टेप्स होते हैं वो जो है वो हमारे मॉडलिंग पर डिपेंड करते हैं। इज इट क्लियर? ना आफ्टर क्रिएटिंग द डेटा, यहाँ तक हमने अपने डेटा को प्रॉपर कर लिया है। अब हमारा डेटा जो है वो इजीली मॉडल में फिट हो सकता है। करेक्ट? यहाँ तक किसी का कोई डाउट्स है? एनी डाउट्स टू एनीवन? यहाँ पर जो है अभी हमने कुछ नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर वो पार्ट कंप्लीट किया है जो एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। डेटा एनालिस्ट का यही काम होता है कि वो डेटा लेकर आता है, उस पर्टिकुलर डेटा पे जो भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है, उस पर्टिकुलर डेटा में जो भी आपको चीजें दिख रही हैं उसमें से उसको क्या करता है, इवॉल्व करता है, उसमें से पर्टिकुलरली चीजों को एक्सट्रैक्ट करता है। एंड दिस इज ओनली द वर्क ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। सो यहाँ तक का जो वर्क था वो डेटा एनालिस्ट का था। आफ्टर दैट व्हेन वी क्रिएट अ मॉडल, जब आप एक मॉडल क्रिएट करने जाते हो, तो यहाँ पर जो है हम पर्टिकुलरली प्रेडिक्शंस जो है वो फाइंड आउट करवाना चाहते हैं अब अपने मॉडल के। इज इट क्लियर? सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सीक्वेंशियल मॉडल। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज सीक्वेंशियल मॉडल? सीक्वेंशियल मॉडल क्या होता है? नो आइडिया मैम। सी सीक्वेंशियल मॉडल, कल मैंने एक पर्टिकुलर आपको आर्किटेक्चर दिखाया था जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। कनेक्टेड थे। हैव यू सीन दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर? और अगर आपको वो याद नहीं हो दैट मैंने आपको कल कुछ प्रीवियस स्टेप्स बताई थी
कि व्हेन वी टेक अ पर्टिकुलर इनपुट इमेज, जब मैं कोई पर्टिकुलर इनपुट इमेज लेती हूँ, आफ्टर दैट मैं उसके ऊपर कन्वोल्यूशनल लेयर लगाती हूँ. एवरीवन रिमेंबर्स दिस. Yes. आफ्टर दैट मैं उसके ऊपर रेलो लेयर लगाऊंगी. रेलो के बाद Yes. उसमें मैक्स पूलिंग करेंगे, देन फ्लैटनिंग एंड देन फुली कनेक्टेड लेयर. Fully connected. Yes. व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस बना रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग अ सीक्वेंस हियर. एम आई राइट? मैंने एक सीक्वेंस बनाई ना. मैंने ऐसा तो नहीं किया कि मैंने सबसे पहले फुली कनेक्टेड लेयर लगा दी, फिर मैंने कन्वोल्यूशनल लेयर लगा दी, फिर मैंने रेलो लेयर लगा दिया. ऐसा कुछ किया है क्या मैंने? No. सो दिस इज नोन एज अ सीक्वेंशियल मॉडल. जब आप पर्टिकुलरली एक के बाद एक Sequence ऑपरेशन wise. परफॉर्म करते हैं, ये सीक्वेंस वाइज. यस, करेक्ट. So what we have done, we are going to create a sequential model. It is normally possible. मतलब आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि आप सबसे पहले फ्लैटनिंग कर दिया, आफ्टर दैट मैंने कन्वोल्यूशनल लेयर लगा दी, फिर मेरा मन हुआ तो मैंने फिर मैक्स पूलिंग कर दी, फिर मैंने फुली. नो, यू कांट डू दैट. Yes, someone is saying something. Okay, so we are going to create a sequential model here. So that's why what I have done here, I have created again a variable here, and then what we have written, keras.sequential. Keras is our library. In that particular library, we have to implement a function here, sequential function. What this function will do? Now, I have again a question for you. What is a function, first of all? A function क्या होता है? See, उसके नेम में उसकी डेफिनेशन है. फंक्शन इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर थिंग जो एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है. करेक्ट. फंक्शन क्या होता है? सीक्वेंशियल फंक्शन क्या करेगा? सीक्वेंशियल मॉडल क्रिएट करेगा, उसकी एक फंक्शनैलिटी है. आप जब पर्टिकुलर व्हेन वी कोड, जब हम कोड करते हैं तो उसमें मल्टीपल फंक्शंस के थ्रू कोड होते हैं. फंक्शंस क्या होते हैं? जो चीज आपको कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके प्रोवाइड करती है. सो यहाँ पर भी जो एक सीक्वेंशियल है, ये सीक्वेंशियल क्या है? पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो आपको एक सीक्वेंशियल मॉडल बना के देगा. जिसमें क्या करूंगी मैं? अब सीक्वेंशियल मॉडल तो बन गया, मेरे पास एक आर्किटेक्चर आ गया. मैं सीक्वेंशियल मॉडल के अंदर क्या करना चाहूंगी? इसमें पर्टिकुलर हमको चीजों को क्या करना है? ऐड करना है. करेक्ट. लाइक मैंने एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर बनाया, मुझे इसमें कन्वोल्यूशनल लेयर लगानी. कन्वोल्यूशनल के बाद क्या करना है? मुझे इसमें रेलो लेयर लगानी है. आफ्टर रेलो लेयर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने मैक्स पूल लेयर लगाई. तो सबसे पहले मुझे एक उसका बोल सकते हैं कि मुझे ब्लॉक एक क्रिएट करना पड़ेगा जो क्या है? सीक्वेंशियली मूव करे. Is it clear to everyone? So that's why we have created a sequential model here. After creating a sequential model, what I have done, I have added some of the layers here. You can see here, model.add keras.layers, convolutional 2D, and activation relu, padding same, and input shape. You can see here, I have given some of the variables in a particular function, or I should say, I have given some of the parameters in a particular function. Now, see, and then read this thing properly. What I have done, I have created a model and add the particular convolutional 2D layer. Why we have written here convolutional 2D? Can anyone tell me this? मैंने यहाँ पर convolutional 2D क्यों लिखा है? Two dimensional. 2 डायमेंशनल. आपका जो इमेज होता है वो 2 डायमेंशनल होता है या 3 डायमेंशनल होता है? करेक्ट Yes, ma'am. है ना. सो हमने यहाँ पर 2 डायमेंशनल क्यों लिया है? बिकॉज अब हमने क्या है? पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स क्रिएट किया है कन्वोल्यूशनल 2D, जिसमें So we हमने said 32 columns. फिल्टर्स यूज किए हैं. 3x3 इज द मैट्रिक्स. मैंने आपको अगर कल याद हो तो मैंने आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाया था, जो मैंने बोला था ये फीचर डिटेक्टर होता है. किसी को याद है ये चीज? मैंने आपको कल बताई थी चीज कि एक फीचर डिटेक्टर होता है जो मैं इनपुट इमेज पे लगाती हूँ, और उसके बाद क्या होता है? मुझे एक फीचर मैप मिलता है, और उस पूरे ऑपरेशन को हम जो बोलते हैं वो कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन बोलते हैं. करेक्ट. सो यहाँ पर जो मैंने लेयर लगाई है उसमें मैंने सबसे पहले 3x3 का एक मैट्रिक्स यूज किया है जो मेरी इमेज पर लगेगा, जिससे हमको एक फीचर मैप मिलेगा. इज इट क्लियर? आफ्टर दैट हमने एक एक्टिवेशन वैल्यू लगाया है. एक्टिवेशन वैल्यू क्यों यूज होता है? वैल्यू इसलिए यूज करते हैं बिकॉज हमारे जो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, जो नॉन नेगेटिव बेसिकली थिंग्स हैं, वो हमारे पर्टिकुलरली फीचर मैप में से रिमूव हो जाए. हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ फीचर मैप में पॉजिटिव वैल्यूज. दैट्स वाई हमने क्या किया है? रेलो को जो है वो यहाँ पर यूज किया है. आफ्टर दैट पैडिंग इज इक्वल्स टू सेम. सी, पैडिंग का कंसेप्ट क्या होता है? बेसिकली पैडिंग इज नथिंग बट जब हम पर्टिकुलरली एक इनपुट इमेज लेते हैं एंड ऑन दैट इनपुट इमेज जब आप एक फीचर डिटेक्टर को यूज करते हो,
हमने कल फीचर डिटेक्टर यूज किया था। सो इफ यू रिमेम्बर कि लास्ट वाले जो रोज हैं उन पर क्या हो रहा था, सिर्फ हमारे पास पर्टिकुलरली एक एक नंबर्स ही हमारे पास लास्ट में पर्टिकुलरली रह गए थे। सो रिमूव, तो उसको उस पर्टिकुलर चीज को कवर अप करने के लिए हम उसके साइड में और जो जीरो है उनकी पैडिंग कर देते हैं, सो दैट जो हमारा फीचर मैप है वो पूरी इमेज पर चल पाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसको जो बोलते हैं बेसिकली उसको पैडिंग बोलते हैं, so that we can properly stride our feature map in the particular input image. After that मैंने यहाँ पर input image का shape दिया है. You can see here the shape of the input image 256, 256. I have declared here the shape of my input image as 256, 256. So आपको जब particularly model में लेना है तो हमको यहाँ पर input shape भी देना पड़ेगा, that what is the shape of your particular image. After that, what is the 3 here? Can anyone tell this? 3, what does Channel. 3 represents here? Channel, yes, correct. Channel. So the third channel, third channel means if the particular channel number is 3, means which type of image is this? 3D. Three dimensional. Yes, yes, that is correct. But then 2, black and white image or RGB image? RGB image, because Correct. Yes, 256. RGB image. Yes, it is RGB image. No, 256 पे चीजें डिपेंड नहीं करती, वो तो इमेज का साइज है. RGB image because it has 3 channels, red, green and blue. अगर मेरे पास पर्टिकुलर क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती तो उसमें एक ही चैनल होता है, ब्लैक या व्हाइट. दैट्स व्हाई. इज इट क्लियर? सो यहाँ पर हमारे पास RGB images, मतलब हमारे पास सारे कलरफुल images हैं. सो यू हैव टू प्रोवाइड द चैनल आल्सो हियर. After that, again we have created a 2D convolutional 2D layer and sequentially added this particular layer to our model. See now when we create a particular model, जब भी हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसमें हम मल्टीपल लेयर्स लगाते हैं. मल्टीपल लेयर्स क्यों लगाते हैं कि अगर आपके पास सफिशिएंट डेटा है देन यू कैन इजीली क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स मॉडल हियर. अगर आपके पास बहुत अच्छा डेटा है कि यस मेरे पास 10,000, 20,000, 30,000 इमेजेस हैं, so you can create a complex model. Complex models means what? Complex model is nothing but in a model in which they have multiple layers. जिस particular model में multiple layers होते हैं, multiple particular क्या होती हैं, जब हम थोड़ा dense network बनाते हैं तो उसको हम particularly complex model बोलते हैं. So हमने यहाँ पर भी क्या किया है, हमने particular एक convolutional layer लगी. Again we have used a convolutional layer. Is it clear? Same, you can see the code is written same here. Model.add Keras.layers convolutional 2D filters. Again, we have used 32 cross 32 filters. Activation value and filling same. Remember one thing, you don't have to give the input shape again and again. आपने पर्टिकुलर से फर्स्ट लेयर में आपको इनपुट शेप देना पड़ता है जब हम कन्वोल्यूशनल लेयर लगाते हैं. आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू प्रोवाइड द इनपुट शेप इन योर मॉडल अगेन एंड अगेन. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, after using convolutional layer, what we have used redo function also for to remove the non-negative remove the negative values. After removing the negative values, the third step was the max pooling. Do you remember this thing? First step was convolutional operation, second was redo, and third was max pooling. Again what we have done the max pooling operation here with the filter of 3 cross 3 filter. So max pool 2D will give you the predictions of max pool feature. आपको जो pooling features हैं वो ये particularly max pool 2D operation जो है वो perform करके देगा. So जो feature map मैंने convolutional के through find out किया था उसके ऊपर मैंने max pooling किया. Why we have done max pooling? Max pooling का operation क्या perform करता है कि आपका जो stride होता है 3 cross 3 का जो matrix होता है, इसको हम अपने input image पे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर विंडो को स्लाइड करते हैं 1 by 1 और उसमें से हमको जो मैक्स वैल्यू मिलती है हम उसको सिलेक्ट करके अपने पर्टिकुलरली फीचर मैप में रख लेते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, यस, टिल हियर मैंने जो बताया कि मैक्स पूलिंग ऑपरेशन तक हमने क्या परफॉर्म किया, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट?
After performing the max pooling, you can see here again we have used convolutional layers and max pooling layers. Means what? What we are doing? We are जस्ट क्रिएटिंग अ डेंस मॉडल. हम एक डेंस मॉडल बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे लेयर्स हो. बहुत सारे लेयर्स क्यों? क्योंकि जब मेरा डेटा इन लेयर्स पे से धीरे धीरे पास होगा, सो इट विल ट्रेन, वो खुद को ट्रेन करते जाएगा. ईच एंड एवरी लेयर, हर जो पर्टिकुलर लेयर होती है आपके मॉडल में, वो सिर्फ इसको ट्रेन करने के लिए होती है कि हम अपना जो मॉडल है वो बेसिकली कितना बेस्ट ट्रेन कर सकते हैं. सो अगेन मैंने फिर से ये ऑपरेशन परफॉर्म किया. आफ्टर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस मैंने मैक्स पूलिंग लगा दी एंड सो ऑन. सो हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली कितने लेयर्स यूज किए हैं? वी कैन काउंट दिस. 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 to 15 पर्टिकुलर हमने क्या किए हैं? लेयर्स यूज किए हैं पर्टिकुलर अपने एक मॉडल में. सो इट इज नॉट सो मच dense, but yes, we can say that it is not a simple model, it is a complex model. Is it clear to everyone? After you can see here, मैंने ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको रिपीट की है. Convolutional 2D, then we have used max pooling, again we have done that only, and so on. After that, let's come to flatten layer. So what does this particular function performs? What is the use of this particular function or the concept, we can say? Yes, anyone? फ्लैटन का कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था कि पर्टिकुलरली जब मुझे अपने डेटा को जो है, अगर वो हमको क्या करना है, डेंस लेयर्स में फिल करना है या फुली कनेक्टेड लेयर्स में देना है, सो मैं उसको एक 2D फॉर्म में नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ. 2D फॉर्म मीन्स 2 डायमेंशनल, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में आप अपने डेटा को नहीं वहां पर फिट कर सकते हो. इफ यू वांट टू फिट योर डेटा देयर, देन व्हाट यू हैव टू डू? You have to convert it into one dimensional array. So converting those particular array into one dimensional will help us to fit the particular data in fully connected layers. So what I have done here, I have created a flatten layer, and after creating a flatten layer, we have again added a dense layer to our model. Dense layer is nothing but the fully connected layers that are added in the last of our particular model. After that, we have used some dropout layers. Now, dropout is nothing but when we train a particular model, जब भी आप particular model को train करते हैं, उसके कुछ chances होते हैं. have some chances to overfit it. मतलब particularly क्या होता है कि जब हम एक model train करते हैं तो उसमें बहुत सारी conditions होती है. Overfit condition क्या होती है? Overfit condition means ये कि आपका particularly model जो है वो उसी data पर बहुत ज्यादा train हो गया है. उस डेटा पे ट्रेन हो जाना इन द सेंस मीन्स, अगर मैंने पर्टिकुलरली उससे एक बाहर का डेटा लेके आई, अगर मैंने वैलिडेशन डेटा पे टेस्टिंग करवाया कि यस कि मुझे बताओ कि पर्टिकुलर प्रेडिक्शन कैसा है, तो वो प्रेडिक्ट नहीं करके देगा मुझे. वो फॉर एग्जांपल 30 to 40% प्रेडिक्शन देगा. बट अगर मैं उसको ट्रेनिंग डेटा पे ही प्रेडिक्ट कर रही हूँ, जिस चीज को मैंने पर्टिकुलरली उससे ट्रेन किया है, अगर उसी पे प्रेडिक्ट करा रही हूँ, तो वो मुझे 99% प्रेडिक्शन दे रहा है. इट मीन्स आवर मॉडल हैज ओवरफिटेड. ओवरफिट की कंडीशन ये होती है, मतलब ना तो मेरा मॉडल बहुत ज्यादा ट्रेन होना चाहिए और ना बहुत कम ट्रेन होना चाहिए. योर मॉडल शुड बी ऑप्टिमल. इज इट क्लियर? मींस आपका मॉडल जो है वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना चाहिए. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन हियर, हमने एक ड्रॉप आउट लेयर लगाई कि अननेसेसरी जो न्यूरॉन्स होंगे, बिकॉज हमने बहुत डेंस मॉडल बना दिया. अब इस डेंस मॉडल में क्या है, बहुत सारे पर्टिकुलरली न्यूरॉन्स आ गए हैं. सो जो अननेसेसरी न्यूरॉन्स है उसको हम क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओवरफिटिंग की कंडीशन समझ में आई, दैट व्हाट इट हैपेंस, जब आपका मॉडल ओवरफिट हो जाता है. ओवरफिट इन द सेंस, आप ये सोचिए कि अगर आपका पर्टिकुलर कोई कॉलेज एग्जाम है, अगेन मैं एग्जाम्स का एग्जाम्पल दे देती हूँ. 6 मंथ्स आपने पर्टिकुलरली, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आपने एक बुक में से पढ़ा है, 6 महीने आपने पूरा उस बुक में से पढ़ा है. आपने उस पर्टिकुलरली बुक में से इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि अगर मैं आपको उसके आउट ऑफ that particular syllabus, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, then you will not even recognize कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है. आपको सिर्फ उस पर्टिकुलरली बुक में जितनी चीजें हैं वही समझ में आ रही है, उसके बाहर की चीजें यू कांट आंसर इट. सो उसको बोलते हैं ओवरफिट हो जाना. मतलब एक ही जो डेटा है आप उसी पर ट्रेन हो गए, उसके बाहर की चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है. सो दिस इज द ओवरफिटिंग कंडीशन, क्या आपने बहुत ज्यादा सीख लिया है एक ही तरह के डेटा पे. Is it clear? So हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा इस तरह से बिहेव करे, so that we have added a dropout layer here. After that, what I have done here, model dot add, again we have added dense. We have
written a 10 parameter, or we can say a parameter 10 here. Why so? यहाँ पर मैंने मेरी जो सबसे लास्ट लेयर होती है जो मुझे प्रिडिक्शंस देती है, इफ यू रिमेम्बर, अगर हमने डॉग और कैट वाला प्रिडिक्शन करवाया था तो उसमें मैंने सबसे लास्ट में मैंने सिर्फ 2 न्यूरॉन्स रखे थे, एक कैट को आइडेंटिफाई करवा रहा था और एक डॉग को। डू यू रिमेम्बर दिस? ये किसी को याद है? कल मैंने बताई थी चीज। मैंने सिर्फ लास्ट में 2 न्यूरॉन्स रखे थे, जो एक कैट को आइडेंटिफाई करा था, सेकेंड वाला डॉग को आइडेंटिफाई करा था। वो वाला लेयर जो है वो डेंस लेयर कहलाता है, जो लास्ट वाला लेयर होता है। यहाँ पर मैंने 10 उसका जो है वो पैरामीटर पास कर रखा है, मतलब 10 न्यूरॉन्स आने चाहिए। बाय इसमें यहाँ पर 10 न्यूरॉन्स क्यों आने चाहिए? एनीवन? सी, यहाँ पर मैंने 10 न्यूरॉन्स लास्ट में इसलिए लिए हैं, व्हाई? बिकॉज बिकॉज मेरे पास 10 कैटेगरीज है, मेरे पास 10 कैटेगरीज है ना, करेक्ट? एक जो हेल्दी लीफ है और बाकी जो 9 कैटेगरीज है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर डेंस में 10 पर्टिकुलर कैटेगरीज ली है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपके पास जितनी कैटेगरीज है आपको उसको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है, बिकॉज लास्ट में जो सबसे लास्ट वाला न्यूरॉन रहता है, जो सबसे लास्ट वाला लेयर होती है, वो आपकी यही कैटेगरीज को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर 10 उसके लिए लिया है। एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स, सी सॉफ्टमैक्स इन द सेंस, मतलब ये जो पर्टिकुलरली फंक्शन होता है और एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ये आपको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के टाइम पे यूज करना पड़ता है। सो यहाँ पर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं? चीजों को क्लासिफाई करवा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर सॉफ्टमैक्स का यूज किया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। हेलो? ओके। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन द लर्निंग रेट। अब लास्ट सबसे मेन चीज होती है लर्निंग रेट। व्हाट इज द लर्निंग रेट ऑफ योर मॉडल? अगर आप आपके मॉडल को बहुत फास्ट ट्रेन होने को बोलोगे तो हो सकता है कि वो कुछ चीजें लैप्स कर दे। इट कैन बी पॉसिबल। अगर मैं बोलूंगी कि आपको जिस स्पीड से चलना चाहिए आप उससे 4x स्पीड से चल रहे हैं, तो यू कैन मिस समथिंग दैट बिटवीन। इट इज नॉर्मल, इट इज नेचुरल टेंडेंसी। सो व्हेन यू आर ट्रेनिंग अ पर्टिकुलर मॉडल, आपको जो पर्टिकुलर उसका लर्निंग रेट रखना पड़ता है वो भी ऑप्टिमल रखना पड़ेगा। ना तो वो बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। इट शुड बी ऑप्टिमल, दैट easily it is learning the things one by one and training itself on this particular things. Is it clear? तो यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली लर्निंग रेट प्रोवाइड किया। आफ्टर दैट कंपाइलिंग, व्हाट डज कंपाइलिंग मीन्स? कंपाइल मतलब क्या होता है? एनीवन? कंपाइल करना इन द सेंस कि मॉडल तो आपने बना लिया, यस, मैंने पूरा एक सीक्वेंशियल मॉडल बना लिया, उसमें मैंने कन्वोल्यूशनल लेयर्स लगा दिए। आफ्टर कन्वोल्यूशनल लेयर्स आई हैव एडेड एक्टिवेशन आल्सो, रेलो फंक्शन। आफ्टर एडिंग रेलो आल्सो वी हैव एडेड pooling layer for the max pooled features we are getting from this particular thing. Then we have added a flatten layer to flatten our data. Then we have used some of the dense layers and dropout layers at the last of our model. बट वाई डू वी कंपाइल और मॉडल? कंपाइल क्यों करना पड़ता है? कंपाइल इसलिए करना पड़ता है कि अगर आपने मॉडल बनाते टाइम कुछ गलती करी है, इफ यू हैव डन सम ऑफ द मिस्टेक्स व्हाइल क्रिएटिंग अ मॉडल, देन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइल मतलब क्या होता है? आपका मॉडल जो है वो एक बार में पूरा रीड होता है कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है, and then we can proceed if there is no mistake in our model. So we have to compile our model here. आपको compile भी करना पड़ता है अपने मॉडल को। Is that clear to everyone? And after that you can see the summary of your model. Model summary is what? मॉडल समरी इज नथिंग बट आपने जो क्रिएट किया है, यू कैन सी हमने जितनी लेयर्स लगाई है सब आ रही है। सबसे पहले हमने कन्वोल्यूशनल 2D लेयर ली थी, फिर से हमने कन्वोल्यूशनल 2D लेयर ली थी। वी हैव टेकन 2 कन्वोल्यूशनल लेयर्स, यू कैन सी हियर 1 and 2। आफ्टर दैट मैंने मैक्स पूल लेयर लगाई थी, यू कैन इजीली सी हियर कि मैंने मैक्स पूल लेयर लगाई है। फिर मैंने कन्वोल्यूशनल लेयर लगाई थी, फिर कन्वोल्यूशनल देन मैक्स पूल लेयर। मींस आपका जो मॉडल का आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर पूरा शो हो रहा है। कैन यू सी दैट? यू कैन सी हियर द आर्किटेक्चर ऑफ योर मॉडल। एनी डाउट्स टू एनीवन? एंड इवन आप ये भी देख सकते हैं कि लास्ट में जो हमारे डेंस लेयर जो है वो लास्ट में हमको 10 कैटेगरीज में जो प्रिडिक्शन देने वाली, तो लास्ट में हमारा प्रॉपर आउटपुट यहाँ पर वो आ भी रहा है। मतलब ये है दैट आई हैव क्रिएटेड, मैंने जो पर्टिकुलर मॉडल क्रिएट किया है वो परफेक्ट क्रिएट किया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये पर्टिकुलरली प्रोसेस होती है कि आप किस तरह से पर्टिकुलरली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करते हैं। एनीवन हैव सम डाउट्स? किसी को कोई डाउट्स है यहाँ तक? यहाँ तक जो है वो हमने अपना 80% वर्क कंप्लीट कर दिया कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का। मैंने आपको बता दिया दैट हाउ वी कलेक्ट डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको हमने अपलोड कैसे किया, अपलोड करने के बाद उसको रीड कैसे करना है डेटा को, एंड आफ्टर रीडिंग दैट डेटा व्हाट आर द प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स वी हैव टू परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा. After performing the pre-processing steps, what we are going to do, we are going to create sequential model for that particular data set. And after creating that model, अच्छा, now I have a question. अभी तो मैंने मॉडल क्रिएट किया है, मॉडल जो है वो अलग रखा है, अब डेटा सेट मेरा अलग रखा है. व्हाट आई हैव टू डू, अब मेरा ये पर्टिकुलरली टास्क है दैट आई हैव टू ट्रेन दैट डेटा ऑन दिस मॉडल. मॉडल मेरा बना है लेकिन अभी मैंने इसमें डेटा प्रोवाइड नहीं किया है. सो व्हाट आई हैव टू डू, यू कैन सी हियर. अब मुझे क्या करना है पर्टिकुलरली, कुछ एपॉक्स तक. एपॉक्स मतलब क्या होते हैं यहाँ पर, एपॉक्स इन द सेंस मतलब कितने बार आपको अपना मॉडल ट्रेन करना है. मैंने बोला 100 टाइम्स होना चाहिए, 5 टाइम्स होना चाहिए, 6 टाइम्स होना चाहिए. सो एपॉक्स इज नथिंग बट द टाइम्स यू हैव टू ट्रेन योर मॉडल. आपको कितनी बार अपने मॉडल को ट्रेन करना है. इज इट क्लियर? Model.fit. Fit is a particular function that will fit your data in that particular model. So you can see मैंने train data को यहाँ provide किया है, validation data में मैंने test data दिया है, epochs हमने दिए हैं. Batch size is what? Batch size is nothing. See, अब पर्टिकुलरली हमारे पास 10,000 जो डेटा है पर्टिकुलरली ट्रेनिंग के लिए, तो अगर मैं इस 10,000 डेटा पे एक बार में अपने मॉडल को ट्रेन करूंगी तो इट विल बी कॉम्प्लेक्स, और वी कैन से कि वो थोड़ा टफ होगा मेरे मॉडल के लिए भी सीखना. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अपने बैचेस में डेटा को प्रोवाइड करने वाली हूँ. सबसे पहले मिक्स्ड करके 500 डेटा दूंगी शफल्ड करके, फिर सेकंड इपॉक में फिर 500 डेटा प्रोवाइड करूंगी. सो इसमें क्या होगा कि हमारा मॉडल जो है वो प्रॉपर्ली ट्रेन हो जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम. यस मैम. सो यहाँ पर हमने क्या किया, अपने मॉडल को ट्रेन किया. आफ्टर ट्रेनिंग मतलब हमने 5 इपॉक्स तक चलाया है. जब आप इसको रन करोगे, आई एम नॉट ट्रेनिंग दैट, मैं यहाँ पर ट्रेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट इज नॉट इजी टू ट्रेन अ मॉडल. इतना आसान नहीं है मॉडल ट्रेन करना. अगर मैं इसको रन करूंगी तो एटलीस्ट जो पर्टिकुलर मॉडल है अगर मैं उसको 100 इपॉक्स तक चलाती हूँ तो इट विल टेक 2 to 3 आवर्स टू रन. कम से कम 2 से 3 घंटे में वो पर्टिकुलर मॉडल ट्रेन होगा. इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल. अब यहाँ पर डेटा बिकॉज थोड़ा ज्यादा है मेरे पास, अच्छा पर्टिकुलरली अमाउंट में डेटा है, सो इट विल टेक सम टाइम, मीन्स कम से कम 2 to 3 आवर्स जो है ये मॉडल 100 इपॉक्स तक ट्रेन होने में लगता है. एलसी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास ये फाइल जो है मैं शेयर कर दूंगी द डेटा. You run, या आप इसको रन करके देखना and you run this particular thing. So it will take at least 2 to 3 hours to train the model. So after Okay, training ma'am. that, जब हमने ट्रेन किया है, so ट्रेन करने के बाद हमको कुछ आउटपुट्स मिलते हैं. So आउटपुट के पहले हम कुछ और ग्राफ्स देखते हैं जिसके थ्रू हम कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं. ये ग्राफ जो बनाया है वो किसकी करस्पॉन्डिंग बनाया है? You can see here training versus validation loss. लॉस इन द सेंस मतलब जब हमारा मॉडल ट्रेन होता है हर एक एपॉक पे, जब धीरे धीरे एक एपॉक पे आपका मॉडल ट्रेन होता है तो क्या होती है उसमें चीजें, बेसिकली हर एक एपॉक पे आपका लॉस कम होते जाएगा. मतलब ये है ऑब्वियसली इट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि अगर आपका मॉडल ट्रेन हो रहा है और अगर वो पर्टिकुलरली सीख रहा है तो उसका लॉस कम होता जाएगा. मतलब लॉस कम इन द सेंस मीन्स कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज वो ग्रास्प कर रहा है मतलब जो है कि ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि वो चीजों को समझ नहीं पाएगा. इज इट क्लियर? सो जैसे जैसे आपका मॉडल ट्रेन होता है उसका जो लॉस है वो कम होता जाता है. Is it clear? So you can see here जब हमने ट्रेन करना शुरू किया था, you can see 2 lines here, orange and blue. So when we have started, जो ग्रीन ब्लू वाली लाइन है वो ट्रेन के लॉस की है, जो ट्रेनिंग लॉस है, और जो वैलिडेशन लॉस है मतलब टेस्टिंग लॉस, वो जो है वो इक्वली रिड्यूस हो रहे हैं और लास्ट में जाके हमारे मॉडल का पर्टिकुलर लॉस बहुत रिड्यूस हो चुका है. इज इट क्लियर? सेम अगर आप एक्यूरेसी का ग्राफ देखें राइट हैंड साइड पे, तो एक्यूरेसी की ग्राफ पे यू कैन सी हियर कि जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी बढ़ रही थी ऐसे वैलिडेशन एक्यूरेसी भी हमारी बढ़ रही थी. इज इट क्लियर? सो ये है कि वी कैन
समराइज वी कैन से कि मैं से ये समराइज कर सकती हूँ कि यस कि मेरा मॉडल जो है वो प्रॉपर्ली ट्रेन हुआ है। क्या होता है बेसिकली बहुत बार ऐसे ग्राफ्स देखने को मिलते हैं कि ट्रेनिंग और वैलिडेट ट्रेनिंग जो आपका एक्यूरेसी है और ट्रेनिंग जो लॉस है वो क्या होता है पर्टिकुलरली प्रॉपर होता है कि फटाफट गिरता है, बट जो वैलिडेशन एक्यूरेसी और वैलिडेशन लॉस है वो आपका प्रॉपर नहीं होता है इनके साथ। सो वहां पर आपका मॉडल प्रॉपर ट्रेन नहीं होता है। इज इट क्लियर? अब आई हैव अ क्वेश्चन कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वैलिडेशन एक्यूरेसी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन डेटा सेट, तो ये सब क्या होता है बेसिकली? टेस्टिंग और वैलिडेशन में कोई डिफरेंस होता है कि ये दोनों एक ही है? सी, ट्रेनिंग डेटा इज द डेटा जब आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, जब प्रोवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? और ट्रेनिंग एक्यूरेसी उसी को बोलते हैं जो आपके मॉडल को जब ट्रेन होता रहता है वो ट्रेनिंग डेटा पे, जब वो एक्यूरेसी जो आती है उसको हम ट्रेनिंग एक्यूरेसी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज validation accuracy or what is validation data or validation loss? Validation accuracy is nothing जब आपका मॉडल ट्रेन होता है। एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग जब आपका मॉडल, उसी टाइम हम क्या करते हैं प्रिडिक्ट करते जाते हैं हर इपॉक पे। जैसे मैंने 100 इपॉक्स तक चलाया तो मैं क्या करूंगी हर इपॉक पे, हर एक पर्टिकुलर इपॉक पे क्या करूंगी अपने मॉडल को टेस्ट करूंगी कि कैसे सीख रहा है। इज इट क्लियर? मतलब आपका पर्टिकुलर मॉडल जब हर एक पर्टिकुलर लाइन पर ट्रेन जो हो रहा है जिस पर्टिकुलर इपॉक पे, जब उसी पे हम उसको टेस्ट करते हैं, देन इट इज नोन एज वैलिडेशन एक्यूरेसी। अदरवाइज ये पता चला कि मेरा जो मॉडल है वो कंटिन्यूसली ट्रेन होता जा रहा है ट्रेनिंग डेटा पे, और वैलिडेशन जब मैं उसको चेक कर रही हूँ उसके करस्पॉन्डिंग, तो उसमें कोई भी प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब आपका मॉडल ट्रेन नहीं हो रहा है। अनटिल एंड अनलेस आपका वैलिडेशन एक्यूरेसी और वैलिडेशन लॉस जो है वो ट्रेनिंग के करस्पॉन्डिंग नहीं होते हैं, वी कांट से दैट आवर मॉडल इज लर्निंग प्रॉपर्ली। सो आपके जब ग्राफ्स बनते हैं तो ट्रेनिंग और वैलिडेशन के करस्पॉन्डिंग ही बनने चाहिए, मतलब साथ में। अगर ट्रेनिंग लॉस कम हो रहा है तो वैलिडेशन लॉस भी कम होना चाहिए। अगर आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी बढ़ रही है तो आपकी वैलिडेशन एक्यूरेसी भी उसके करस्पॉन्डिंग बढ़नी ही चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब Yes, नाउ यू ma'am. कैन सी हियर कि हमने ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो फाइंड आउट करवाई है वो 85% आई है, टेस्टिंग एक्यूरेसी 82% है, प्रिसीजन रिकॉल ये पर्टिकुलरली एक्यूरेसी स्कोर्स होते हैं जो हमने फाइंड आउट कराए। मतलब हमारा मॉडल कितना ट्रेन हुआ है 85 और 82%। मतलब मैं अभी इसको 85% को कंसिडर कभी नहीं करूंगी बिकॉज ये तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी, जो ट्रेनिंग डेटा है उस पर जो सीखा है। बट जो टेस्टिंग एक्यूरेसी होती है वो हमारी परफेक्ट होती है कि आपका परफेक्ट कितना दे रहा है, आपका परफेक्ट प्रेडिक्शन जो है वो मॉडल कितना यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट एक Yes. कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है। व्हाट आर कंफ्यूजन मैट्रिक्स नाउ? ये कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं और वी कैन से पर्टिकुलरली कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं जो हमको ये बताते हैं दैट हाउ वेल आवर मॉडल हैज प्रिडिक्टेड, आपके मॉडल ने कितना अच्छा प्रिडिक्शन दिया है। बिकॉज अगर इवेलुएट करना है तो आपको कुछ टूल्स तो चाहिए और या फिर कुछ हमको पर्टिकुलरली फंक्शंस चाहिए अपने मॉडल को इवेलुएट करवाने के लिए। So for this, what we have taken, we have created a confusion matrix here. हमने confusion matrix create किया। Confusion matrix is nothing but particularly matrix होता है जिसमें ये पता चलता है हमको कि हमारे मॉडल ने कितने करेक्ट पर्टिकुलरली लेबल्स हैं जो प्रिडिक्ट कराए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास पर्टिकुलरली हर एक कैटेगरी के 1000 इमेजेस थे, सो उसमें जो हेल्दी लीव्स है वो 1000 में से मेरे मॉडल ने सिर्फ 500 प्रिडिक्ट करी है। सो ऐसे ही यहाँ पर यू कैन सी हियर जो करेक्टली प्रिडिक्टेड आइटम्स हैं हर कैटेगरी के, कि फर्स्ट कैटेगरी के आइटम्स 87 जो है वो करेक्टली प्रिडिक्ट करी है, सेकंड आइटम्स जो है वो 77 करेक्ट प्रिडिक्ट करी है, थर्ड कैटेगरी में 76 प्रिडिक्ट करी है एंड सो ऑन। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि आपकी पर्टिकुलरली हर एक कैटेगरी को किस तरह से क्लासिफाई करा है आपके मॉडल ने। ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्दी लीव्स जो है वो उसने 99% करेक्टली प्रिडिक्ट करी है, बट जो आपकी कोई दूसरी डिजीज है वो प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। इज इट क्लियर? Yes, सो ma'am. ये हमारे पर्टिकुलरली 10 क्लासेस का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स था। ये पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सो इस तरह से हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं, मॉडल क्रिएट करने के बाद उसको प्रिडिक्ट करवाते हैं कि आपका कितना उसने परफेक्टली प्रिडिक्ट किया।
किया है। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये पूरा बैकएंड में चलता है। अभी हम अगर आपको इसको लाइव करना है, और वी कैन से कि अगर आप इसको हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करके इसको जो है अगर आप इसको फील्ड में लेके जाएंगे, देन इट विल परफॉर्म द प्रेडिक्शंस। यहाँ पर जो है वो यू कैन सी द कोड, आपको कोड दिखेगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमने कैसे प्रेडिक्शंस करवाए हैं ये आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। बट जब आप इसको रियल वर्ल्ड में लेके जाएंगे तो यू हैव टू इंटीग्रेट, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। या तो आप इसको वेब पे लेके जाइए, और अदरवाइज यू हैव टू इंटीग्रेट टू हार्डवेयर डिवाइस, या तो आप किसी हार्डवेयर डिवाइस के अंदर इसको इंटीग्रेट करवा के इससे प्रेडिक्शंस निकलवा सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये जो पूरा था ये एक इम्प्लीमेंटेशन था कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको क्लियर हुआ? अगेन आई हैव अ कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब हमारे पास मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ आई से अगर मेरे पास, मैं आपको बार बार एक चीज पे फोकस करने को बोलती हूँ दैट अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा मॉडल बना सकते हो। बट क्या ऐसा नेसेसरी है कि हमेशा आपके पास एक ह्यूज अमाउंट या फिर बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ डेटा रहेगा? That's not possible every time for me to collect so much data. Yes, अगर मैं कहीं फील्ड्स में जाके भी कलेक्ट करती हूँ डेटा, सो मुझे अगर 10 कैटेगरीज का डेटा कलेक्ट करना है तो मैं हर कैटेगरी के 50 इमेजेस ले आऊंगी। फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं इतने सारे इमेजेस क्लिक करके लेके आऊँ। होता है, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। सो हैव यू एवर थॉट, क्या आप लोगों ने सोचा कि बेसिकली इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ चीज होगी, या इसका भी कोई हमने ओवरकम या फिर कुछ इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है कि अगर डेटा नहीं है तो क्या करना चाहिए? सी, इन डीप लर्निंग अगेन वी हैव अ कंसेप्ट, हमारे पास एक इसके लिए अलग सी कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट इसलिए हमने बनाया है बिकॉज अगर आपके पास बहुत कम डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे पास सिर्फ 500 इमेजेस हैं, सो 500 इमेजेस पे तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं स्क्रैच से मॉडल बनाऊं। स्क्रैच इन द सेंस मतलब शुरू से एक एक कोड जो हमने यहाँ पर लिखा है, जो एक एक लाइन जो हमने यहाँ पर लिखी है, लाइक मॉडल इक्वल्स टू सीक्वेंशियल, एंड फिर हम लेयर्स लगाई हैं उसमें एंड सो ऑन। सो वी कांट थिंक टू क्रिएट अ मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। what we will do now, अब हम क्या कर सकते हैं? So what we are going to do, we are going to take a model which is already trained. अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है कि हम पर्टिकुलरली एक ऐसे मॉडल को ले सकते हैं जो ऑलरेडी क्या है, ट्रेंड है। अब किस पे ट्रेंड है? जो मिलियंस ऑफ इमेजेस पे ऑलरेडी पर्टिकुलर एक मॉडल जो ट्रेंड है, हम उस मॉडल को लेके आएंगे और उसमें अपना डेटा फिट कर देंगे। मतलब ये कि अब मुझे मॉडल ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, सिर्फ इतना सा काम है कि मुझे डेटा लेकर आना है। आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा मुझे उसकी प्री प्रोसेसिंग करनी है, प्री प्रोसेसिंग करने के बाद उसको क्या करना है, एक मॉडल जो बना हुआ है मुझे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अभी जो मैंने लिखा है कि मॉडल सीक्वेंशियल एंड आई एम एडिंग द लेयर्स, ये मुझे करने की जरूरत नहीं। व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू एड माय डेटा और फिट माय डेटा इन दिस पर्टिकुलर मॉडल। मुझे क्या करना है, सिर्फ पर्टिकुलरली इस मॉडल में अपने डेटा को फिट करना है। इज इट क्लियर? सो उस कॉन्सेप्ट को जो होता है उसको हम बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। मतलब वहां पर हमारा जो वर्क है वो हाफ, मतलब 50% काम ही हमको करना पड़ता है एज कम्पेयर टू द मॉडल वी आर क्रिएटिंग फ्रॉम स्क्रैच। इज इट क्लियर? सो टुमारो, Yes. कल हमारा जो कल का मोटो रहेगा वो यही है कि बेसिकली एक तो ये है कि पर्टिकुलर अगर हमने कोई मॉडल बनाए हैं तो हम उसको रियल वर्ल्ड या फिर यूजर से कैसे इंटरेक्ट करवाएंगे। इट इज नेसेसरी कि आपने कुछ चीज बनाई, देन यू वांट, आप ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलरली रियल वर्ल्ड में जाए, या फिर इसका पर्टिकुलरली क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो हमको भी समझ में आना चाहिए। सो वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ फ्लास्क, ऑल्सो एक फ्रेमवर्क होता है पाइथन का जिसके थ्रू हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना के अपने मॉडल को उसमें बैकएंड में फिट कर सकते हैं। सो क्या होगा बेसिकली, आप पर्टिकुलरली जब अपना कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करके अगर आप कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं तो उसी टाइम वो बता देगा कि द पर्टिकुलर लीफ इज इन्फेक्टेड और नॉट। इज इट क्लियर? Mm. सो Yes, sir. सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, हम ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो कल इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो यू कैन ऑल्सो सी, वी कैन सी, होती है चीज की जब पर्टिकुलर हम बैकएंड कुछ वर्क करते हैं देन वी वांट सम ऑफ द आउटपुट फ्रॉम दैट। हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये 35% रिडक्शन है, 82% रिडक्शन है, बट जब मैं उस पर्टिकुलर चीज को विजुअलाइज कर पाऊंगी खुद अपने
देख पाऊंगी, एनालाइज कर पाऊंगी दैट यस इट इज करेक्टली प्रिडिक्टिंग कि अगर पर्टिकुलर मैंने इन्फेक्टेड लीफ दी है तो मेरा मॉडल प्रिडिक्ट करके दे रहा है वहां पर कि यस दिस इज द लीफ इज इन्फेक्टेड वन. So it is something that we are going to implement tomorrow. And one is the concept of transfer learning. Right now I told that it is the main concept in deep learning because we want that not all the time it is necessary that you have so much of data. So we can easily use that particular concept, and there are multiple models that are created on that particular concept. आपको उस पे thousands of models जो है मिल जाएंगे जो आपने create कर रखे हैं ट्रांसफर लर्निंग के ऊपर. I can share the reference papers also. There are multiple papers जो आप reference ले सकते हैं ट्रांसफर लर्निंग के concept के लिए. तो concept हम इसीलिए यूज करते हैं because we can create, हम इजीली जो है वो पर्टिकुलर एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर पाए जो एक्सेस अमाउंट ऑफ डेटा नहीं देता हो. एंड वन थिंग मोर, अब जो है वो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अब पर्टिकुलर जब मैं एक मॉडल ट्रेन करती हूँ तो इट टेक्स 2 to 3 hours ऑफ टाइम. अगर वो सिर्फ 100 epochs पे चला रहे हो आप और उसमें इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है, मतलब 10,000 डेटा इज वेरी मिनिमम डेटा. मैं बहुत मिनिमम डेटा बोलूंगी कि अगर आप इसको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में लगा रहे हो तो. जब एक मॉडल ट्रेन होता है, जब एक कोई हैवी मॉडल ट्रेन होता है, लाइक मैंने कल एग्जांपल्स दिए थे कि हमने गूगल फोटोज का एग्जांपल लिया था एंड फेसबुक का हमने जब एग्जांपल लिया था तो उसमें हमने क्या देखा था. यू कैन इवन डू, आप अगर ये सोच भी नहीं सकती कि पर डे जो है ये चीजें कितना डेटा जनरेट कर रही है. यू कैन इवन थिंक कि पर्टिकुलरली फेसबुक जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पर कितने लोगों ने एक्सेस कर रखा है पर डे में. उन सब लोगों के फेसेस को याद रखना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर मॉडल टू रिमेम्बर सच ऑफ द थिंग्स. मतलब वो कितनी हैवी मशीन होगी जो सारी चीजों को क्या कर रही है, मेमोराइज करके रख रही है. सो यहाँ पर जो 10,000 डेटा, ये तो मैंने बहुत एक मिनिमम अमाउंट बताया है जो हम स्टार्टिंग करते हैं इसमें. जब एक जो पर्टिकुलरली जब मॉडल्स ट्रेन होते हैं, मतलब जब ये पर्टिकुलर मॉडल्स ट्रेन होते हैं तो जो ये जो है ये टेराबाइट्स ऑफ डेटा, जो मिलियंस ऑफ डेटा है जो इन पर्टिकुलर डेटा पे क्या होते हैं, ट्रेन होते हैं. एंड देन इट टेक्स द टाइम ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली यू थिंक कि मेरा 10 मिनट में मॉडल ट्रेन हो रहा है. नो, इट विल टेक टाइम, इट टेक्स लॉन्ग टाइम. अच्छा खासा एक पर्टिकुलर एक मॉडल टाइम लेता है आपको ट्रेन होने के लिए. सो ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू हम अपना टाइम भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. वी कैन ट्रेन द मॉडल थ्रू दैट कंसेप्ट. हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली आपने जो एक ऐसा मॉडल ले रखा है जो ऑलरेडी ट्रेन्ड है, सो वी डोंट हैव टू ट्रेन इट अगेन. आपको फिर से उसको ट्रेन नहीं करना पड़ेगा. सो यू कैन इवन save your time also by using the concept of transfer learning. Is it clear? So it is a good concept, एक अच्छा सा concept है and it is easy also. ऑब्वियस है, जब आपको कुछ बनी बनाई चीज मिल रही है आपको बस इतना करना है कि आपको डेटा लेना है. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट पुट योर डेटा इन दैट पर्टिकुलर मॉडल. बट ऐसा नहीं है, उसमें भी आपको जो है वो एक स्मार्ट वर्क लगता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि बस ऐसा है कि हमने एक मॉडल लाए और उसमें डेटा फिट कर दिया है. इट विल टेक टाइम, वो भी टाइम लेता है. बट ये है कि यस आपके पास एक हैवी मॉडल आया है जिसके ऊपर आपने एक मॉडल अपने पर्टिकुलरली क्या कर दिया है, डेटा को फिट कर दिया है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो जब हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो आपके पास दो, वी कैन से यू हैव 2 kinds ऑफ पर्टिकुलर मॉडल्स. आपके पास 2 तरह के मॉडल्स होते हैं. एक मॉडल जो यू कैन क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, जो अभी हमने क्रिएट किया है, एंड वन मॉडल दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर लर्निंग, जो आप एक प्री ट्रेन मॉडल यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड है. हम उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस करवा सकते हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. नाउ एनी क्वेश्चंस? आपके कोई क्वेश्चंस है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है, जैसे इतनी थाउजेंड्स ऑफ डिसीज होती हैं प्लांट्स में, हर एक क्रॉप की अलग होती है, तो इसके लिए ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल होंगे? मैम यस, मिल सकते हैं. ऐसा नहीं, हमारे पास ऑलरेडी कुछ ऐसे पेपर्स भी हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर मॉडल्स बना रखे हैं. और जो पर्टिकुलर मैंने आपको भी एक मॉडल बताया जो हम लाइक रेस्टनेट है, एलेक्सनेट है, तो मैम इसके लिए भी ऑलरेडी मॉडल्स बने हुए हैं जो ट्रेन मॉडल्स हैं. मैम अब इट इज नॉट नेसेसरी कि हम
थाउजेंड्स ऑफ डिसीजेस पे जो है वो पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा मॉडल ला सकते हैं जो ट्रेन है। अगर ऐसा है तो फिर हमको वहां पर थोड़ा सा हम उन पर्टिकुलर मॉडल्स का रेफरेंस ले लेते हैं कि हम उनमें से क्या करते हैं, जो नेसेसरी पार्ट है वो ले लेते हैं, बाकी का जो है जो अपना पर्टिकुलर मॉडल है वो उसको यूज कर लेते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर मॉडल्स नहीं है जो सिर्फ इनके लिए बने हो। लाइक एक इमेजमेंट डेटा सेट था एंड इट वाज अ कंपटीशन, बेसिकली कंपटीशन था जिसपे कुछ मॉडल्स क्रिएट किए हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं एंड उन्हीं को हम यूज करते हैं। लाइक रेसनेट है, एलेक्सनेट है, जो इमेजनेट डेटा सेट है एंड इट वाज अ डेटा सेट जिसमें मिलियंस ऑफ इमेजेस थी एंड उसमें बहुत सारी कैटेगरीज थी, इवन थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज, मतलब सारी उसमें बहुत सारी कैटेगरीज थी। बट नॉट स्पेसिफिकली, आई कांट टेल कि इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ हमारे पास इमेज प्लांट की लीव्स के लिए ही है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऐसा मॉडल चाहिए तो इट इज बेस्ट कि हम अपने मॉडल को स्क्रैच से ही ट्रेन करें। बट लाइक डॉग्स एंड कैट्स हैं और मैनी थिंग्स, जैसे आपको व्हीकल्स डिटेक्ट करना है और कोई पर्टिकुलर नॉर्मल जो जनरल पर्पस चीजें अगर आपको डिटेक्ट करवाना है तो वो जो है वो इमेजनेट डेटा सेट में जो हमने एलेक्सनेट और ये जो पर्टिकुलरली रेस्टनेट के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको यूज कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर आपको पर्टिकुलर लाइक अभी हमने जो किया है, सो दे आर नॉट नॉर्मल थिंग्स कि कोई पर्टिकुलरली लीफ की जो डिसीजेस है उसको डिटेक्ट करना। सो वहां पर जो है वो हम प्रेफर करते हैं कि वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रैच, मतलब जो स्क्रैच से है उसी से हम क्या करें, पर्टिकुलर मॉडल को ट्रेन करें। ओके ओके Yes. मैम। एनी मोर डाउट्स, कोई और डाउट्स? नो एनीवन? मैम। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क देन, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये व्हाई डू वी यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, हम क्यों इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, व्हाई इट इज बेनिफिशियल, what are the real world applications where we are implementing such kind of things in day to day life, and what is the goal of such kind of models we are creating here. See, because इन ईच एंड एवरी फील्ड, अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में चले जाओ, आप मेडिकल फील्ड में हम जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कब से ये पर्टिकुलर थिंग्स हैं, अब हर एक फील्ड में यू कैन सी दैट एआई इज मेकिंग सम ऑफ द थिंग्स देयर। एआई के थ्रू कुछ ना कुछ पर्टिकुलरली पैटर्न में चीजें वहां पर यूज हो ही रही हैं, बिकॉज ये जो है पर्टिकुलर चीज को ऑटोमेट कर रहा है। जो ह्यूमन, जो एक पर्टिकुलर पर्सन का काम है उसको हमने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। इज इट क्लियर? सो अगर हमारा मशीन एक पर्टिकुलर ऐसी चीज परफॉर्म कर सकती है एंड इट इज प्रिवेंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि ये आपकी क्रॉप को खराब होने से प्रिवेंट कर रही है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इतनी सारी जो क्रॉप्स होते हैं, जो प्लांट की लीव्स है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक ह्यूमन उसको एनालाइज करे, बिकॉज ऐसा नेसेसरी नहीं है। अगर आज वो हेल्थी लीफ है, हो सकता है वो 4 दिन बाद क्या हो जाए, डिसीज हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए। सो इट इज नॉट possible for a human to analyze it regularly, and it is not only a one leaf or two leaves. when जब फार्मिंग होती है तो उसमें मल्टीपल एकर्स में जो है वो लैंड होता है और उस पर पर्टिकुलरली ये चीजें परफॉर्म होती है। सो ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, इस तरह से हम कुछ पर्टिकुलर एक डिवाइस बना सकते हैं जो क्या करे, पर्टिकुलरली वी कैन से कि हर आर या फिर बेसिकली हर डे जो है एक पर्टिकुलर इमेज कैप्चर करे डिफरेंट पूरे जो पर्टिकुलर लैंड का है, और उससे क्या करे आपके मॉडल से जो है वो एनालिसिस करवाए कि पर्टिकुलरली इसमें कोई हेल्थी लीव से कोई इन्फेक्टेड है, so we can have the we can say medicines for that particular leaves at that time only, and we can prevent those particular crops from infecting. We can do that. ये पर्टिकुलरली एक टास्क हम रख सकते हैं फॉर फ्यूचर, यू कैन मेक दिस पर्टिकुलर गोल कि हम पर्टिकुलर ये चीज कर सकते हैं, बिकॉज अभी जो है ये ऑटोमेट नहीं हुई है ये चीजें। So this is the basic concept we can use behind this particular thing. Is it clear? Is it clear to everyone? एनी डाउट्स? आपको कोई डाउट्स है इसके रिगार्डिंग कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या चीजें होती हैं? बट डू रिमेम्बर कि जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है वो हमेशा इमेजेस पर ही लगता है।
You can't use this particular model on means आपको जो input data है वो ऑडियो फॉर्म में नहीं होना चाहिए या फिर टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं होना चाहिए. अगर आपको जो पर्टिकुलर जो हमारा डेटा है either it should be in matrix form. You can pass the array also. Basically array means what? Array is also the matrix. एक 2-dimensional array एक matrix ही कहलाता है. So your data should be in the form of array, or you can say in the form of images, means in the JPG PNG format. Then and then only you can fit this particular data in our model. Is it clear to everyone? Any doubts regarding this? Any doubts regarding the concept of deep learning? आपको deep learning में कोई doubts है? What you have summarized? हमने जो particularly CNN अभी पढ़ा 2 दिन में, what we have summarized? हमने क्या summarize किया इसमें? Dear participants, you may ask any question related to CNN model, deep learning. Okay. Okay, no question. So, okay, fine. So, okay, Malika ma'am, I think there is no question from participants' side. Okay. And it's, I think it's too heavy for the agriculture students and faculties, because it's a pure computer coding. Yes. But it's must to understand for everyone. Yes. So you can easily understand. आप मतलब basically इसका सिर्फ concept समझ लीजिए, because it will be useful for yourself. आपके लिए ये useful है in your field also basically. Not the coding, but the concept is useful for yes, ma'am. this field basically. Yes, ma'am. Yes. So because ये तो IT field का काम है basically कि हम जो code है वो करें, but basically आप हम एक It's concern very कर interesting, सकते मैम, कि हैं. फील्ड पे हम लोग Yes. विजिट करते हैं तो हमारे पास सो मैनी इतने सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसको फिर इमेज में लेना, कोडिंग, एंड देन हम आइडेंटिफाई करना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Yes. We can take ना कि हम एक इमेज लेके अगर उस पे खुद ही अगर predictions कर सकते हैं, then it is a good thing basically. And we can implement this too. We can create a device too, so it will be beneficial for yourself to analyze the things easily. Yeah. So this was the concept, and tomorrow we are going to learn that how we are going to implement this with the web application. हम इसको देखेंगे कि web application के through हम किस तरह से पर्टिकुलर एक यूजर के थ्रू इसको इंटरेक्ट करवा सकते हैं. मतलब हम बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे. आफ्टर क्रिएटिंग दैट वेब एप्लीकेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अपलोड अ पिक्चर. हम एक पिक्चर अपलोड करेंगे जो इन्फेक्टेड लीफ होगी, और हम बैकएंड में एक मॉडल को वर्क करवाएंगे जो हमारा ये वाला मॉडल है जो मैंने अभी आपको शो किया. सो दिस मॉडल विल बी वर्किंग इन द बैकएंड, ये बैकएंड में वर्क कर रहा होगा. एंड व्हाट विल दिस मॉडल विल डू, इट विल प्रिडिक्ट. तो आपको प्रिडिक्ट करके देगा कि this is the infected leaf या फिर it is a healthy leaf. Is it clear? So you can see live that how a particular model is working. Is this clear to everyone? Okay, ma'am. Okay, Yes, ma'am. fine. So this is from my side. Thank you so much. Okay, thank you, Thank you, madam. ma'am. Okay, Thank dear you, sir. participants, once again, any question in mind you may ask. You can ask Otherwise, any we question. close this session, and after this session, you may have any query, then you can put on your WhatsApp group. Okay, so don't worry. Okay, I think, ma'am, shall we close this session? Yes, I sure, think sir. there is no question from the participant side. Okay, sir. Okay. So once again, thank you very much, Malika ma'am. And we meet tomorrow at sharp 3 p.m. And tomorrow is the last day of our this certificate course program. So I request to all the participants connect with us for the last day of this certificate course. Thank you, ma'am. Thank you, Thanks so much, sir. participants. Okay. Good night. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, thank you.